dear students, how are you all? Hope you all are happy and healthy. So let's start today our computer subject. And in computer subject today we are going to start from page number 1, and on page number 1 our chapter first, know your computer. Okay, so from this chapter you will come to know how computer is useful in our life. Okay, and what are the use we do with the help of computer. Okay, so first of all we go through our lesson. Computers are very useful for us. Okay, they help us to do many activities. We use different computers for different purposes. Okay, so here we are going to see one example is given in the form of match the following, and you are going to match. And already I have shown in this question first by matching with the picture and the answer, and you are going to do in your textbook and in notebook also. Okay, so match the picture with what we do on a computer. Okay, so here it is given, pictures are here, okay, on the left side and the right side. With the help of computer you can listen songs, play games, type letter and messages, draw pictures and color them, watch cartoon and movies, and you can also make greeting card also. Okay, so here are the few answer matched with the picture, you can see easily. Okay, so my computer is also useful in our work this way also. Okay students, now we will see on page number 2. So on page number 2 we will go more through man-made and about machine. So what work is done by the man and what work is done by the machine also. Okay, so here you can see picture. Okay, computer is given and one human being in the form of a boy picture is given. Okay, so difference between the computer and man. Computer and man, first line we will go it. Computers have become an important part of our lives. Okay, nowadays computers are very important in our life, but computers are different from us. Okay, computers are different from us. How computers are different from us? Computer is a machine and we are human beings. We sometimes tired by doing our work, but computer never gets tired. You can do many works within the many hours also. Okay, so let's see how it is different from human being. Okay, so first we will see about computer, how computer is helpful to us. Okay, so picture is also given, you can see. So this is the computer. Okay, and work done by the computer: works fast, does not make mistakes, does not get tired, and next one is stores everything in memory. Okay, whatever work you did you can save also. Okay, need instruction to work. Okay, अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपका वर्क भी सही करेगा. ठीक है. कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन. कंप्यूटर को दिमाग नहीं होता, हम जो उसको बोलते हैं वही वो करता है, इसलिए वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, मशीन है. नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. इसको वर्क करने के लिए यानी इससे कंप्यूटर से वर्क करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. बिना इलेक्ट्रिसिटी ये ऑन नहीं होगा तो आपका वर्क नहीं होगा. ओके, अब ह्यूमन बीइंग के बारे में हम देखते हैं. ह्यूमन. ओके, यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर दिया है एंड वी विल गो थ्रू अबाउट द ह्यूमन बीइंग. कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर. कंप्यूटर जैसा फास्ट वर्क नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मिस्टेक होती है और वो टायर्ड हो जाता है. ओके, कैन मेक मिस्टेक्स एंड गेट्स टायर्ड. नेक्स्ट वन मेमोरी स्टोर है, वो भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा समय तक की कुछ जो बात याद होती है वो एक लिमिट होती है याद करने की, और बहुत सारी बातें हम याद नहीं कर सकते जैसे एक कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि हमारी दिमाग की जो सेव की बात वो प्रिंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं कुछ बातें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टोर सम थिंग्स इन द मेमोरी. कुछ लिमिट होती है हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें याद करने की, कुछ बातें याद करने की. ठीक है. कुछ एज के बाद हम भूल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कंप्यूटर को कितने सालों तक आप यूज़ करो तो उसकी कोई एज नहीं होती कि वो भूल जाए. ठीक है. एंड कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन. हमें किसी की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आप छोटे होते हो तो मम्मी पापा की हेल्प, स्कूल में टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपको वर्क आता है तो आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं. ठीक है. टेक्स डिसीजन ऑन हिज ओन. ठीक है. आपको अगर लग रहा है कि आपको पानी पीना है, आपको ऐसा थर्स्टी लग रहा है तो क्या करोगे? आप पानी पीने वाले हो. ठीक है. तो इसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पानी पीना है तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ. ओके.
एंड डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, हमें वर्क करने की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, हाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 2. See on page number 2, beside being different from us, computer are also similar to us in some ways. देखो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, लेकिन कुछ बातें कंप्यूटर की और हमारी सेम है। वो कौन सी बातें हैं? फर्स्ट वन, बोथ कैन कलेक्ट एंड यूज़ इंफॉर्मेशन, कुछ वर्क करने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए तो हम वर्क करते हैं, ठीक है। सेम वे इन ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर को ये सेम है। सेकेंड पॉइंट, बोथ हैव मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू यूज़ लेटर, हाँ कुछ मेमोरी हम लोग अपने माइंड में जो है वो सेव करते हैं ताकि हमें जब ज़रूर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज टीचर ने क्या सिखाया मम्मा जब पूछते हैं तो हमें वो याद होता है, कब याद होता है? क्योंकि हमारे माइंड में वो सेव है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी ऐसे है। और लास्ट वन, बोथ नीड केयर टू वर्क प्रॉपरली, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, समय से सोते नहीं खाते नहीं, तो फिर हम क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। सेम अगर मशीन का हम सही से यूज़ नहीं करते, उसको टाइम से क्लीन करना, ज़्यादा फाइल उसको अगर हम डिलीट नहीं करते, ओवरलोड वर्क होता है तो सेव नहीं होगा वर्क। ऊपर से अगर हमें टाइम पे उसकी जो ज़रूर होती है एक वायरस निकालने की, वो अगर नहीं करते हैं तो फिर कंप्यूटर वर्क नहीं करता, लाइट नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर होगी, हमें जैसे प्रॉब्लम होती है बिना फूड के, नो एनर्जी, तो कंप्यूटर का भी ऐसे हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल पेज 1 and 2 we did today in our class, and next we will continue our next lecture. Okay students, thank you students, have a nice day.